Hello, everyone. Thank you for joining us today. We hope everyone is staying safe and enjoying the new normals. The TNP cell would like to take this opportunity to welcome everyone to this webinar today. In today's webinar agenda, we'll be covering how to improve your quantitative aptitude skill for placement. Today, we have with us Mr. Nihar to grace the event with his experience, expertise, and knowledge. He's an MBA graduate from IIM Rohtak and pursued graduation in mathematics from Hansraj College. He has a rich experience of 15 plus years in training students for CAT and various other aptitude based entrance exams. Apart from teaching, he has also 3 years of corporate experience in sales and brand management. It's a pleasure to have you, sir, today with us. While handing over the mic, now I would like to request Nihar, sir, to take over. Hello everyone, good afternoon to all of you. Uh, I don't have the right to share anything. Can the host please allow me the right to share? Just a second, sir. We are sharing the right. Sure, sure. So you can now share the screen. Yes, yes, yes. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Fine. All right. So let's get started with the session. So the agenda is this. We are going to understand how to develop our skills on performing well on quantitative aptitude. Now, to begin with, we'll understand what is quantitative aptitude, and this is something that you find in a lot of places. So when I say a lot of places, so suppose you are wanting to sit for the placements, so there are a lot of companies which will conduct an aptitude test जिसमें क्वांट भी होता है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, शॉर्ट में भी कॉल इट क्वांट. So during placement, a lot of companies will use quantitative aptitude questions to test your readiness for the corporate job, because they want to test that a candidate has that kind of knowledge or that kind of skills or not, which will be required to perform well on the job. But then aptitude test is not just used by companies in their placements. Aptitude test is also used by a lot of exams. So when you say exams like MBA entrance exams like CAT or other MBA entrance exams, other than that, you will know there are exams like Bank PO, there are exams like SSC. Even if you are wanting to pursue an exam like UPSC to become IAS or IPS officers, even that has aptitude test, which is known as CSAT, in the preliminary round. So aptitude is something which is tested everywhere for an entry. And in today's session, we'll focus on one aspect of aptitude test, which is quantitative aptitude. So generally speaking, there are two type of aptitudes that you will see in the exams. One is known as quantitative aptitude. Another one is known as verbal aptitude. So when we say quantitative aptitude, it is a combination of knowledge of maths and skills. Okay. For that matter, any aptitude you say, any aptitude is basically a combination of knowledge and skills. So since we are saying quantitative aptitude, then you need knowledge of mathematics and skills.
Had it been verbal aptitude, then you need knowledge of English and skills. Okay. This skill is something which is common to whether it is verbal aptitude or quantitative aptitude, right? So by conducting these exams or by taking aptitude tests, the companies or the colleges, they are trying to check whether a candidate should have basic knowledge of mathematics and English, because we all study mathematics and English till class 10th at least. आप लोग तो इंजीनियर हैं, आप लोग ने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, बट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में मैथ्स और इंग्लिश ऐसी चीज़ है जो हम 10th तक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं. उसके बाद हमारी चॉइस होती है, अगर 11th 12th में हमने आर्ट्स ले लिया तो हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, अगर 11th 12th में हमने कॉमर्स ले लिया और विदाउट मैथ्स ले सकते हैं, तो वो हमारी चॉइस पे है. But these exams will not really test you on mathematics, which is beyond the level of 10th level mathematics. There will be questions, a couple of them here and there, which might be from some topics which is there in 11th 12th syllabus. But those topics are very easy kind of topics. They don't really ask hardcore questions like differentiation, integration, all those things. They will be very easy topics which anybody can understand with a little bit of knowledge of mathematics. All right. Now, the best way to learn how to improve our quantitative aptitude skills is to actually solve a few questions, because unless we solve the questions, we'll not know the nuances of what is quantitative aptitude and what should be our mindset while preparing for clearing aptitude test in any of the exams. Okay. So what I've done is, for today's session, I have brought a few questions, and through the questions, we'll learn what are the types of skills which are tested through the questions. Of course, basic knowledge is being tested on mathematics, but we'll also understand what are the skills which are being tested, why those skills are important, and why those skills are being tested. And therefore, what should be our strategy or what should be our mindset while preparing for these exams, right? So let us start with the first question. And I want everybody to try these questions. So unless you try, you won't really get the gist of what I'm trying to explain in this session. So I want everybody to try this question and tell me the answer in the chat box. It's a very simple question. It does not require too much of mathematics. It just requires counting, actually. If you know how to count numbers, you should be able to figure this out. All right, so we can see some answers in the chat box. Let's wait for another 20 seconds and then we'll understand what is the correct answer. All right. Right. Okay. So a lot of you have given the correct answer. The correct answer is actually 55. But some of you have done some mistakes. Okay. And why do we make such mistakes? Let's understand. कुछ लोगों का आंसर I have seen an answer as high as 63. I have also seen an answer which is as low as 25. So there is a big variation in the answers. Somebody actually thought कि answer 25 भी हो सकता है. Somebody actually thought कि answer 63 भी हो सकता है. And there could be a lot of answers in the middle. Okay. There is a wide variation in the answers. Although a lot of you have got the correct answers. But where do we go wrong? It's just simple counting. Let me show you first 1 to 100. Let's count from 1 to 100 and see कि 4 कहाँ पे आएगा. 4 एक बार तो 4 पे आएगा, अगली बार 14 में आएगा, अगली बार 24 में आएगा, अगली बार 34 में आएगा. उसके बाद अगली बार जो लोग सीधा 44 पे पहुंच गए हैं, फिर 54 पे, 64 पे, 74 पे, 84 पे, 94 पे, वो यहाँ इन्होंने वहाँ आप लोगों ने बहुत सारा नंबर मिस आउट किया है. So probably whoever is getting answer 25 is doing this way. But what we have to understand is here
यहाँ पे जो है देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स विच विल हैव 4, है ना. 34 के बाद 40 में भी 4 आएगा, 41 में भी 4 आएगा, 42 में भी 4 आएगा, 43 में भी 4 आएगा, 44 में इनफैक्ट 2 बार आएगा. काफी लोग इसका आंसर 53 या 54 भी बताते हैं बिकॉज वो 44 का 2 बार 4 काउंट करना मिस कर जाते हैं. 45 में भी आएगा, 46 में भी आएगा, 47 में भी आएगा, 48 में भी आएगा, 49 में भी आएगा. ओके. So if you count from 1 to 100, these are the number of fours that you will have: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So you'll get 20 times. Then if I count from 101 to 200, same thing will repeat: 104, 114, 124, 134, and so on. So you will still get 20 times. And now we have to go from only 201 to 252. 201 से 252 तक ही जाना है. इसका मतलब 254 का 4, 264 का 4, 274 का 4, 284 का 4, 294 का 4, ये 5 फोर्स काउंट नहीं होंगे. तो आउट ऑफ 24 we will not be counting नीचे वाले ये 5 फोर्स. So you will have only 15 times here. आउट ऑफ 20 टाइम्स नीचे वाले 5 काउंट नहीं होंगे, तो 15 बार ही आएगा. तो 20 + 20 + 15 is equal to 55. Okay, so total will have 55 times, right? You can also do this question using the concept of permutation combination, but आज का एजेंडा मैं ये सोच के नहीं लाया हूँ कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिखाया जाए. आई हैव टेकन सम जेनरिक क्वेश्चन which you can try without any specific knowledge of mathematics. Specific का मतलब आपको permutation combination जानने की जरूरत नहीं है. जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत basic mathematics पता है वो आप use करके कर पाएं. So essentially speaking, this question does not require anything else than counting. It is simple counting. Can I ask this question to a 5th class student? Yes, I can. 5th class का बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर सकता है. सही करेगा गलत करेगा वो अलग बात है, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकता है. So this question is not really checking whether you know counting or not. क्वेश्चन देने का पर्पस ये है, the question is trying to check whether you have an eye for detail or not, whether you have attention to detail वाला क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है, वो स्किल है कि नहीं है. Why is it important? If you lack attention to detail or if you lack eye for detail, then you will be liable to make small little mistakes every time. Now क्वेश्चन कर रहे हैं तो छोटी मोटी गलतियों से बस हमारा आंसर गलत आएगा, हमारा स्कोर कम आएगा, उससे हमारे सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं. बट व्हेन यू गेट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, व्हेन यू गेट इनटू द कंपनीज एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, then your decision making or your actions will involve a lot of money also, involve a lot of cost also. So there you can't afford to make mistakes, and lot of mistakes. So you have to have an eye for detail so that you are not making small little mistakes and your decisions are more or less foolproof, free of mistakes. Okay, so anybody who has an attention to detail is highly valued in any company. तो ये एक पर्टिकुलर स्किल है जो इस क्वेश्चन के थ्रू चेक किया जा रहा है शायद. ओके, मैथमेटिक्स बहुत बेसिक लग रहा है, इट इज जस्ट काउंटिंग, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट इज द स्किल व्हिच इज बीइंग चेक्ड. ऑलराइट, लेट्स लुक एट अनदर वन. Let's try this one. Tell me the answers in the chat box. When we say triplet, it says triplets of integers. Triplets का मतलब होता है group of 3 numbers. Triplet simply means a group of 3 numbers. And you have to keep this in mind also. ये भी fulfill होना चाहिए. A should be less than B, B should be less than C. So
So A plus B plus C is equal to A into B into C. You want three numbers ABC such that A plus B plus C is equal to A into B into C. मतलब उनका sum और product equal होना चाहिए. Okay. A lot of you have answered one. Ashish says infinite. Anyone who says 2 and 2? All right, let's understand. Answer is infinite. Okay, answer is infinite. So all of you who are saying there is one triplet, वो ये होगा, right? I'm sure everybody is thinking about 1, 2, 3. So 1 plus 2 plus 3 is 6 and 1 into 2 into 3 is 6. So this is one triplet and 1 is less than 2 is less than 3 because this condition also you want to meet. So 1 is less than 2 is less than 3. So this is one triplet, 1, 2, 3. But we have to think more. And what do we have to think more? The question says integers, triplets of integers. What are integers? Integers ये सारे भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स. इंटीजर जीरो भी होता है, इंटीजर नेगेटिव्स भी होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. दीज आर ऑल इंटीजर्स. नाउ प्रॉब्लम इज कि हम सबसे पहले सोचते हैं नेचुरल नंबर के बारे में. हमारे दिमाग में सबसे पहले यही स्ट्राइक करेगा एंड दिस विल स्ट्राइक टू मोस्ट ऑफ यू. और थिंकिंग प्रोसेस जो हमारा थॉट प्रोसेस यूं काम कर रहा है कि वी आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर थिंकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर के बारे में अगर सोचेंगे तो ये स्ट्राइक करेगा, बट वी हैव टू थिंक बियॉन्ड. यहाँ क्वेश्चन ये नहीं कह रहा नेचुरल नंबर्स, इट इज सेइंग इंटीजर्स एंड देयरफॉर वी हैव टू थिंक बियॉन्ड नेचुरल नंबर्स. तो एक और है जो किसी के दिमाग में शायद आया नहीं क्योंकि किसी ने आंसर 2 नहीं बोला है. एक ये भी हो सकता है. इज इट पॉसिबल -3, -2, -1? इफ आई थिंक अबाउट नेगेटिव इंटीजर्स, -3, -2, -1 ये भी तो होगा. इन तीनों का सम होगा -6 और इन तीनों का प्रोडक्ट भी होगा -6. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ them. But then if you include 0 also, because 0 is also an integer. Integers पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी एक इंटीजर होता है. तो अगर आप 0 इंक्लूड करके सोचेंगे तो कैन आई राइट -1, 0, 1? इज इट वैलिड? यस. तीनों का सम 0 होगा, तीनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा. So if -1, 1 is one triplet, then -2, 2 will definitely be another triplet. अगर -1, 0, 1 है तो -2, 0, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर तो वो भी होगा. और ये होगा तो फिर ये भी होगा, ये होगा तो फिर ये भी होगा, and so on. This will go on like this. So actually there are infinite triplets. Fine. How much of mathematics does this require? This question does not require any process. You just have to think. कितना मैथमेटिक्स की जरूरत है इसमें? आपको बस पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इतनी मैथमेटिक्स चाहिए. और इंटीजर्स क्या होते हैं ये तो हम 6th-7th क्लास की मैथमेटिक्स में सीख चुके होते हैं. सो दिस इज द ओनली मैथमेटिक्स वी रिक्वायर. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इंटीजर्स. अब इसमें क्या है कि हमको सबसे पहले ये स्ट्राइक करेगा. उसका रीजन सिंपल ये है कि हम नेचुरल नंबर के बारे में सोचें. और हम नेचुरल नंबर के बारे में सबसे पहले क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज वी आर यूजिंग नेचुरल नंबर्स इन आवर एवरीडे लाइफ, है ना. हम किस टाइप के नंबर्स अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं? नेचुरल नंबर. कुछ चीजें काउंट करने के लिए, रुपए पैसे काउंट करने के लिए नेचुरल नंबर तो यूज करते हैं. हम नेगेटिव नंबर्स का यूज अपनी एवरीडे लाइफ में कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. तो इसीलिए हमें नेचुरल नंबर स्ट्राइक करता है. हम नेगेटिव नंबर्स के बारे में बाद में सोचते हैं, जीरो के बारे में बाद में सोचते हैं, जब हमें स्ट्राइक करेगा कि यार ये इंटीजर लिखा है और इंटीजर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब हो सकते हैं. So what is that we learn?
or what is that skill that is being checked? The skill that is being checked is your alertness, in the sense, are you biased with your own conditioning or are you ready to think beyond? यहाँ पे हमारी कंडीशनिंग के हिसाब से हम क्या बायस है हमारा, क्योंकि हम नेचुरल नंबर यूज कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में, तो हम सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में सोचा हमने, उसके आगे नहीं सोचा। तो अगर मेरा डिसीजन मेकिंग मेरे पर्सनल बाइसेस के हिसाब से रहेगा तो माय डिसीजंस माइट बी रॉन्ग, बट इफ आई एम गोइंग बियॉन्ड माय बाइसेस एंड थिंकिंग अबाउट द अदर थिंग्स और अदर पर्सपेक्टिव्स, then it is highly likely that my decision making will be much better. Okay, तो हम अपने अपने बाइसेस को अगर डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करके डिसीजंस लेंगे तो डिसीजंस उतने अच्छे नहीं लिए जाएंगे. So we have to think beyond, right? Fine. I'll give you a very simple question. I'm sure everybody will be able to answer that question. But उस simple question से we are going to learn a few things about quantitative aptitude in particular. So let's try this question. This is a very easy question. I'm sure everybody will get the answer. You can tell me the answer in the chat box. All right. Answer is 10. That's correct. Answer is 10. Okay. Now I'm sure a lot of you must have done this question just by hit and trial. You did not make equation. You did not use any process. And that is how we should go about this. But just to tell you some processes which can be used in this question. So I am listing out a few methods which you can employ. Suppose method number 1. Okay. So we'll say they are asking how many 1 rupee coins are there. So let us say number of 1 rupee coins is equal to X, and number of 2 rupee coins, let's say this is Y. Okay. So first we'll make an equation and say number of coins X plus Y, that should be equal to 18, because total number of coins is 18. And now we'll count the monetary value, because the monetary value is also given, it is 26 rupees. So X coins of 1 rupee will make X into 1. X into 1 is X rupee. And Y coins of 2 rupees will make 2 into Y, which is 2Y rupees. And the total monetary value should be equal to 26. And then we know basic mathematics, how to solve two equations, two variables. We'll solve these two equations and get the value of X and Y both. हमें X का value चाहिए, number of 1 rupee coins चाहिए. तो हम इन दोनों equation को solve करके X की value निकाल लेंगे, X की value 10 आ जाएगी. Okay. Method number 2. ऊपर वाले method में I have used 2 variables, 2 equations. But we can do it in a single variable also. How? Let's say number of 1 rupee coins. Number of 1 rupee coins is X. So can I say therefore number of 2 rupee coins, that will be equal to 18 minus X. ऐसा बोल सकते हैं. टोटल कॉइन्स 18 है, उसमें से X कॉइन्स 1 रुपी के हैं, तो 2 रुपी के कॉइन्स होंगे 18 minus X. Now just count the monetary value. X coins of 1 rupee will make X into 1, which is X rupee, and 18 minus X coins of 2 rupee will make 2 into 18 minus X. These many rupees, and the total amount of money in rupees is 26. So here we have only one equation and only one variable. We can solve this and get the value of X, which will again be 10. Okay. Now these two methods that I have shown you, these are purely mathematics. Okay. In the sense
कि मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आया होता 6th-7th क्लास में, तो द टीचर वुड हैव एक्सपेक्टेड यू टू सॉल्व इट either this way or this way, and the teacher would also have expected you to write each and every step, because if you don't write each and every step you don't get full marks, है ना। मैथमेटिक्स में होता था ना, स्टेप मार्किंग बोलते थे। तो जब तक पूरे स्टेप्स नहीं लिखेंगे तब तक पूरे नंबर नहीं मिलते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दीज एप्टीट्यूड टेस्ट आर नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यू हैव ऑप्शंस आल्सो, राइट। एंड आपको सही ऑप्शन पे टिक करना होता है। अगर ऑफलाइन हुआ तो सही ऑप्शन पे टिक करना होगा, अगर ऑनलाइन हुआ तो सही ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर, एंड हुएवर इज गोइंग टू चेक, अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी मशीन, ऑफलाइन दे रहे हैं तो भी वो एक OMR शीट फिल कराते हैं, तो इवन देन इट इज मशीन। प्लेसमेंट वाले आएंगे तो देयर कुड बी सम ह्यूमन बीइंग रीडिंग योर आंसर्स, but they are only interested in checking whether your answer is correct or not. What is the method you have employed, nobody is bothered. तो आपने कितने स्टेप्स लिखे हैं वो सब किसी को नहीं देखना, उनको बस ये देखना है कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है। अगर ठीक है तो नंबर मिलेगा, अगर गलत है तो नंबर, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नंबर कट जाएंगे, राइट। तो लेट मी शो यू द सेम क्वेश्चन यूजिंग ऑप्शंस। हम बिना ऑप्शन के भी इसको कर सकते हैं, जस्ट बाय प्योर हिट एंड ट्रायल वी कैन डू दैट। बट मान लो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं, अगर मान लो ऑप्शन नंबर A इज 7, ऑप्शन नंबर B इज 5, ऑप्शन नंबर C इज 10, ऑप्शन नंबर D इज 13। अभी तुमने सॉल्व कर ही लिया तो हमें पहले से पता चल गया कि आंसर 10 है, बट एज्यूम दैट वी डिड नॉट नो द आंसर बिफोर हैंड। हाउ वुड वी चेक थ्रू ऑप्शंस? चेक करते हैं, मान लो 7 चेक किया, हमें ये चेक करना है नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। सो जो भी ऑप्शंस में लिखे हैं दीज आर नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, we have to check which is correct, which is not correct. So if I check 7, if we have 7 1 rupee coins, that will make 7 rupees, right? But we have total 18 coins. Out of 18 coins, if 7 coins is 1 rupee coins, then remaining how many coins will be 2 rupee coins? 18 minus 7, 11 coins will be 2 rupee coins, and that will make 11 into 2, 22 rupees. So total here will be 29 rupees. Okay. All this can be done mentally. I am just writing for explanation purpose. ये लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको मेंटली ये सोचना है कि 7 कॉइन्स से 7 रुपीज बनेंगे, टोटल कॉइन्स 18 है, तो 18 minus 7 is 11 coins will be of 2 rupees, उससे बनेंगे 11 into 2 22 rupees, so total is 29 rupees. But our question says total is 26 rupees, so this cannot be the correct answer. Let's check 5. In fact you don't have to check 5. Why? Think logically कि अगर 7 coins of 1 rupee में टोटल अमाउंट 29 बन रहा है, तो 5 coins of 1 rupee में टोटल अमाउंट 29 से और ऊपर बनेगा, 29 से ऊपर और ज्यादा बनेगा। क्यों? बिकॉज 1 रुपी कॉइन ऑफ 7 से 5 कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। तो अगर 1 रुपए के सिक्के हम कम करेंगे तो 2 रुपए के सिक्के ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, बिकॉज टोटल हैज टू बी मेंटेन्ड एज 18 कॉइन्स। 7 से 5 अगर 1 रुपी कॉइन रिड्यूस किया तो 2 रुपी कॉइन्स बढ़ जाएगा, एंड हेंस टोटल अमाउंट भी 29 से बढ़ जाएगा। तो इफ 7 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 7 से छोटा कोई आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकता। क्रॉस दैट। लेट्स चेक 10. 10 coins of 1 rupee will make 10 rupees. There are total 18 coins. 18 minus 10 is 8. 8 coins of 2 rupees will make 16 rupees. And 10 plus 16 is 26 rupees, which matches everything with the question. यहाँ पे सारे कंडीशंस ठीक है, सब कुछ मैच हो रहा है, तो दैट्स आवर आंसर। और आंसर एक ही ठीक होता है, अगर एक आंसर मैच कर गया है तो हमें अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। सो विल नॉट वेस्ट टाइम इन चेकिंग ऑप्शन डी, राइट? Now the same options, if you analyze it in some other way, let me write again 7, 5, 10, 13. So yeah, I'm going to analyze the options and figure out that odd number cannot be the answer. Odd number answer हो ही नहीं सकता, तो even number तो एक ही option में वही होगा. There is no other possibility. What is wrong with odd numbers? Let's understand. Pick any one. Suppose 7 coins. 7 coins will make 7 rupees. अब मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूँ. These 7 coins will make 7 rupees and I need to make 26 rupees.
these 7 coins will make 7 rupees. I need to make 26 rupees. तो 26 minus 7 करेंगे तो 19 बचेगा. ये 7 रुपए के 7 coins of 1 rupee they made 7 rupees, but I need to make 26. उसमें से 7 rupees तो बन चुके हैं ऑलरेडी. बैलेंस कितना बनाना है? 26 minus 7 which is 19. But those 19 rupees have to be made using 2 rupee coins. That's not possible. 2 रुपए के सिक्के जोड़ के 19 रुपए कभी बन ही नहीं सकते. 2 रुपए के सिक्के जितने भी जोड़ेंगे, the amount of money is going to be always even. So 2 rupee coins will never make 19 rupees. Same is the problem with any other odd number. 5 coins will make 5 rupees. You need to make 26. 26 minus 5 is 21. 21 rupees cannot be made using 2 rupee coins. So odd number answer हो ही नहीं सकता. Only even number is 10. That has to be the answer. Okay. Even if you don't have option, you can simply use hit and trial like this. You will say 1 rupee coins, 2 rupee coins. ऐसा कर लेते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं. I'm just doing plain hit and trial. Since there are 18 coins, let us say आधा आधा बांट देते हैं. 9 coins ये भी ले लेते हैं, 9 coins ये भी ले लेते हैं. ठीक. इससे अमाउंट ऑफ मनी कितना बनेगा? 9 coins of 1 rupee will make 9 rupees. 9 coins of 2 rupee will make 9 to the 18 rupees. So 9 rupees plus 18 rupees, the amount becomes 27 rupees. So which does not match with the question. क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो 26 और यहाँ 27 बन रहा है. तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है 9 coins का, ये ठीक नहीं है, इसमें गड़बड़ है. अगर ठीक होता तो यहाँ 26 बनता, जो कि बन नहीं रहा है. तो इस गड़बड़ को, इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हमें सिर्फ रीबैलेंस करना है. रीबैलेंस के बारे में क्या सोचना है कि माई अमाउंट शुड बी 27 के बदले 26. दिस शुड बी माई अमाउंट एंड दैट इज जस्ट अ डिक्रीज ऑफ 1 rupee. मेरा अमाउंट 26 होना चाहिए, वो 27 से 1 रुपया बस कम है, तो मुझे बस इतना ही बैलेंस करना है. तो मैं ये सोचूंगा, और यहाँ टोटल 18 होना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो 18 ही होना चाहिए ना. तो हम क्या करेंगे, 2 रुपए का एक सिक्का निकाल देते हैं, उससे 2 रुपया कम हो जाएगा. और उसके बदले 1 रुपए का एक सिक्का ऐड कर देते हैं, उससे 1 रुपया ऐड हो जाएगा. ठीक है ना. 2 रुपए का एक सिक्का निकाला तो 2 रुपए कम हो गए, और उसके बदले 1 रुपए का सिक्का ऐड कर दिया तो 1 रुपया वापस ऐड हो गया. तो मैंने एक सिक्का निकाला, दूसरा सिक्का इंक्लूड कर दिया, तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विल स्टिल रिमेन 18, बट अमाउंट ऑफ मनी रिड्यूसेस बाय 1 rupee. क्योंकि मैंने 2 रुपए निकाले हैं और उसके बदले 1 रुपया वापस ऐड किया है, तो इफेक्टिवली मैंने 1 रुपया कम कर दिया है. एंड हियर एवरीथिंग मैचेस. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी 18 है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी भी 26 है. सो दिस इज द परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. और आंसर फिर मेरा हो जाएगा 10 coins, बिकॉज नंबर ऑफ 1 rupee coins पूछा है, तो नंबर ऑफ 1 rupee coins is 10. ठीक है. Now, here 5 methods. As I said in the beginning, this question is very simple, but we are going to learn some important lessons through this question. So I've shown you 5 methods. मुझे कम से कम एक मेथड तो और पता है, जिसको बोलते हैं एलिगेशन. बट आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ एलिगेशन राइट नाउ, क्योंकि उसके लिए अलग से हमें एलिगेशन पहले पता होना चाहिए. एलिगेशन हम नहीं पढ़ेंगे अभी, बट एलिगेशन का भी मेथड है जिसको यूज किया जा सकता है. तो 6 मेथड्स आई नो. मे बी इफ यू डिग डीपर यू माइट कम अप विद सम मोर मेथड्स. मे बी आपको एक दो और समझ में आए अगर आप और सोचें इसके बारे में. तो पॉइंट ये है कि वन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन मल्टीपल वेज. ओके. So think about it on a larger scale. One simple thing can be looked at with multiple perspectives. किसी भी चीज को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है. आप जितने अलग अलग नजरिए से देख पाएंगे उतने ज्यादा आप पर्सपेक्टिव्स डेवलप कर पाएंगे. And therefore, when you are solving a problem, if you think of it from multiple perspectives, you will be better suited to find the solution for that problem. Okay. Now, if I look at all these methods, आई थिंक जो एफिशिएंट मेथड है या जो बेहतर मेथड है वो ये दोनों तो नहीं है. आप बोल सकते हो ये मेथड इज ओके, दिस इज आल्सो ओके, दिस इज आल्सो ओके. दीज आर बेटर मेथड्स. दीज 3 मेथड्स आर डेफिनेटली better methods than using method 1 or method 2. So I'm not saying you should not know how to make equation and how to solve equation. All I'm saying is
कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेहतर तरीका है, स्मार्ट तरीका है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है, मेहनत भी बचती है, तो हम क्यों ना उस तरीके को अपनाएंगे, हमारे रिसोर्सेज बचते हैं। आप यही सोचो, कोई कोई बिजनेस प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लेट्स से देयर आर 2 मैनेजर्स, one manager is taking a lot of resources, a lot of time, investing a lot of money to execute that project, and there is another manager who is able to execute the project using minimum amount of resources, minimum amount of money, and with minimum effort and minimum time. So obviously the second manager is preferred. That's what you learn, okay? Because these are skills which are valued in any organization. These are also the skills which will help you to rise up the corporate ladder. तो ये यही चीज डेवलप करनी है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट का एक कह सकते हो हॉलमार्क है कि आप कितने बेहतर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप जितने बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, आप गिवन टाइम लिमिट में उतने ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट? ये जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं, दे दे ऑल हैव अ कॉमन यूएसपी, which is you will have more questions and less time. You will have more questions and less time. So you हेलो। have to understand that with limited amount of time, you have to solve as many क्या questions कर as रहे हो? possible. सरल डिक्लेरेशन चाहिए, सरल डिक्लेरेशन। All right. Somebody's mic is on. Please put that off. तो हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट कोई भी होगा तो उसमें टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। सो इफ आई वांट टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन आई शुड बी थिंकिंग ऑफ यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ऑन एवरी क्वेश्चन। उसके लिए हमें ये स्मार्टर तरीके, ये इंटेलिजेंस, ये सब डेवलप करना पड़ेगा। एंड दीज आर स्किल्स, बेसिकली दीज आर स्किल्स। ये स्मार्टर तरीका जो हम सीख रहे हैं, दीज आर स्किल्स। मैथमेटिक्स तो हमको पता है, ये हमें क्लास में, स्कूल में सिखाया है ये सब, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीकों से कर सकते हैं। दोज आर बेटर वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। फाइन। ये माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है। बचपन से जो सीखते हैं ना, ये एक एक स्टेप लिखने वाली आदत, वो आदत दूर करनी है। सोचना है कि कितना कम लिखें तो आंसर आ जाए, मेंटल कैलकुलेशन से आंसर आ जाए, लॉजिक से आंसर आ जाए, ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर आ जाए। ये सब एक तरीके के स्किल्स हैं। If we are good at all these skills, we'll be able to solve more questions, and hence our chances of selections will be better. Fine. All right. Now let's look at a question where you might need to actually do some pencil pushing. थोड़ी सी मेहनत शायद लग सकती है इस क्वेश्चन को करने में। So give it a thought. Try this question. आंसर आए तो चैट बॉक्स में बताना।
ऑल राइट, सो लेट्स सी इस क्वेश्चन के आंसर्स थोड़े कम आए हैं। यहाँ पे क्या होता है इस क्वेश्चन में, a lot of people will get stuck after a certain point of time. So again this can be solved by using equations. प्योरली मैथमेटिकल तरीका अगर देखें, प्रोसेस वाइज देखें, तो हम बोलेंगे सपोज ए इज पेइंग ए रुपीज, बी इज पेइंग बी रुपीज, सी इज पेइंग सी रुपीज एंड डी इज पेइंग डी रुपीज. All four together paid 60,000. Fine. Let's call it equation number 1. Then it says A paid half of the total amount paid by the other three. So we can write A is equal to half of the total amount paid by other three, B plus C plus D. Let's call it 2. Then it says B paid 1/3 of the total amount paid by the other three. B is equal to 1/3, 1/3 of the total amount paid by other three. So other than B, the remaining three are A plus C plus D. And C paid 1/4 of the total amount paid by the other three. The other three are A plus B plus D. Equation 3, equation 4. Once you make all these four equations and then you think about how to establish a coordination between these four equations to get the answer, then somewhere you will get stuck. ये समझ में नहीं आएगा ये चारों इक्वेशन साइमल्टेनियसली इसका क्या करें और कैसे इसको सॉल्व करें. तो मैं चारों इक्वेशन एक साथ सॉल्व नहीं करनी है, वन बाय वन सॉल्व कर सकते हैं इसको. जैसे आपने द मोमेंट यू राइट इक्वेशन नंबर 1 एंड देन इक्वेशन नंबर 2, हियर इटसेल्फ यू कैन से that instead of B plus C plus D, can I write 60,000 minus A? A, B, C, D का sum is 60,000. So B plus C plus D is 60,000 minus A. So I can write A is equal to half of 60,000 minus A. And now you have one equation and there is only one variable which is A. By solving this, you can get the value of A. Now how to solve without writing too many steps? ये वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको देन एंड देयर यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं. शॉर्टकट तरीका, ये 2 यहाँ से हटा के इधर मल्टीप्लाई कर लो. फिर ये माइनस ए जब उधर लेके जाओगे तो वहां जाके ऐड हो जाएगा. सो 2a प्लस ए हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 3a. ए यहाँ से हट गया. सो 3a विल बी 60,000. सो यू कैन राइट a इज इक्वल टू 20,000. Okay. Similarly, here you can write B is equal to 1/3. Instead of A plus C plus D, from the first equation A plus C plus D, I can write 60,000 minus B. 3 goes here, 3 into B, 3B, and here minus B goes there, you will get 4B. So 4B equal to 60,000. This implies B is equal to 15,000. Here similarly you can say C is equal to 1/4 times A plus B plus D. A plus B plus D can be written as 60,000 minus C. 60,000 minus C. 4 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस C उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये 5C हो गया. 5C equal to 60,000. This implies C is equal to 12,000. Now we have only 4 people, A, B, C, D. We have got the amount paid by A, we have got the amount paid by B, we have got the amount paid by C. So D ने जो पे किया होगा ये हम बोल सकते हैं it will be equal to 60,000 टोटल था, उसमें से माइनस करेंगे इन तीनों का सम. तो 20,000 plus 15,000 plus 12,000. When you add these three, 20 plus 15, 35 plus 12, 47,000. So you'll get 60,000 minus 47,000, and that is equal to 13,000. This is the amount paid by D. Okay. Now if we stop here and we are satisfied, क्या होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, उसके बाद एक बार आंसर की चेक कर लेते हैं. अगर मैच कर गया तो हम कॉन्फिडेंट है कि हमने ठीक सॉल्व किया है, जॉब डन, वी आर सेटिस्फाइड कि चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आप कभी भी नया तरीका या बेहतर तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे. सो वी ऑलवेज हैव टू कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव फॉर फाइंडिंग बेटर आंसर्स या बेटर वेज.
आंसर तो यही रहेगा, बेटर वेज ऑफ फाइंडिंग द आंसर। सो ठीक है, सॉल्व तो हो गया, बट आई थिंक यार सॉल्व हुआ लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, इतना मज़ा नहीं आया सॉल्व करके। लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स। तो सोचेंगे कि थोड़ा और कुछ और तरीके से कर सकते हैं क्या, थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। तो ऐसे कर सकते हैं, वी कैन यूज द मेथड ऑफ रेशियो हियर। रेशियो का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के हम इजीली कर सकते हैं। रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, लेट मी क्विकली टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द रेशियो। सपोज मैंने बोला है देयर इज अ क्लास, और क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है, वी हैव बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5 का है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 4:5 का है, और टोटल स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं वो लेट से 45 है। And the question is how many boys are there and how many girls are there. So back in school the process used to be this, since the ratio is 4:5, हम बोलते थे let us say boys are 4x, girls are 5x, 4x plus 5x ऐड करके 45 बनेगा। इससे x की वैल्यू आ जाएगी 9x equal to 45, x equal to 5, and then you can find out boys are 4x तो 4 into 5 20, girls are 5x तो 5 into 5 25। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती है, there is a shortcut of doing this, you will simply say कि बॉयज, इसको ऐसे ट्रीट कर लेते हैं, बॉयज आर 4 पार्ट्स, गर्ल्स आर 5 पार्ट्स, ओके, सो टोटल इज 9 पार्ट्स, बॉयज आर 4 पार्ट्स, गर्ल्स आर 5 पार्ट्स, एंड टोटल इज 9 पार्ट्स। वी कैन सिंपली से that boys are 4 parts out of total 9 parts, and then multiply by the total number of students. Girls are 5 parts out of total 4 plus 5 9 parts, and then multiply by 45. You will directly get the number of boys, number of girls. 9 5 are 45, 5 4 are 20, and 9 5 are 45, 5 5 are 25. Boys are 20 and girls are 25. That's ratio का थोड़ा सा concept. Now let's see how we can apply ratio here and get the answer. In fact, if you think carefully, you can get the answer even mentally. You don't have to write anything. बिना लिखे भी इसका आंसर फिगर आउट कर सकते हैं। तो आपको सोचना क्या है, इफ आई लुक एट द टोटल अमाउंट पेड बाय ऑल ऑफ देम इज 60,000, राइट? And if you look at this statement, A paid half of the total amount paid by the other three. So if I look at A and the other three, इनके बीच में क्या रिलेशन है? A ने जो पे किया और अदर थ्री ने जो टोटल पे किया, उनके बीच में क्या रिलेशन है? उनके बीच में रिलेशन ये है कि इफ अदर थ्री पेड 2x, then A paid half of 2x, which is x. ये लिखा ना, A paid half of the total amount paid by the other three. So basically इस चीज का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो रेशियो है, x तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो इज 1:2, राइट? और वो हम यूं ही बोल सकते हैं, ये x की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ, हाफ का मतलब 1/2 होता है, तो उसको रेशियो में लिखेंगे तो 1:2 होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हियर द रेशियो इज 1:2, ओके। और A के साथ अदर थ्री मिला देंगे तो इन चारों का जो टोटल होगा वो 60,000 होगा, दैट वी ऑलरेडी नो, राइट? इन चारों का जो टोटल है वो 60,000 है। तो उसमें इंडिविजुअली A का निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे A इज पेइंग 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 1 + 2 3 पार्ट्स। A is paying 1 part out of total 1 + 2 3 parts, so 1/3 of the total amount, which is 60,000, which is 20,000. तो A का आ जाएगा 20,000। अब बाकियों का हम मेंटली कर सकते हैं, एक बार ये हमें प्रोसेस समझ में आ गया है। तो B के लिए क्या होगा, लुक एट दिस, 1/3। तो in case of B, the ratio is 1:3, where B will be paying 1 part out of 1 + 3 4 parts of 60,000, which is 15,000. In case of C, 1/4. 1/4 means 1/4. 1/4 means ratio is 1:4. इसमें C will be paying 1 part out of 1 + 4 5 parts of 60,000, which is 12,000. ये सब हम मेंटली भी कर सकते हैं। इन तीनों का सम करेंगे तो आता है 47,000। टोटल 60,000 में से जब 47,000 माइनस कर देंगे तो 13,000, एंड दैट इज द अमाउंट पेड बाय D, ओके। दिस इज अ बेटर मेथड देन दिस। यहाँ पे इक्वेशन सारी बनानी पड़ेगी, यहाँ पे इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, रेशियो का यूज कर सकते हैं।
और कैलकुलेशन इतनी सिंपल है कि ये सब मेंटली भी कर सकते हैं, या अगर जरूरत पड़ी लिखने की तो विथ वेरी मिनिमम राइटिंग वी कैन सॉल्व दिस. This will also take less time to solve. Fine. So this is the gradual process. If you are satisfied by solving a question, आंसर ठीक आ गया, मैच कर गया आंसर की से, तो हम कभी इंप्रूव नहीं करते हैं. हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा एक लेवल उठ के कि इसको करने का कोई बेहतर तरीका है कि नहीं. If we do this consciously and continuously, that's how we improve in our problem solving skills. Fine. All right, let's look at another question. Let's try this. All right, let's see how to do this. Most of you have got the right answer. The answer is ET1. That's correct. But let's see इसको कैसे किया जा सकता है अगर प्रोसेस वाइज देखें और फिर स्मार्टर तरीका देखें. सो प्रोसेस वाइज इफ यू लुक एट दिस, सो यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है जो हमें मालूम नहीं है, राइट? क्या क्या चीजें मालूम नहीं है? हमें ये नहीं मालूम कि हाउसवाइफ के पास इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी कितना है. हमें ये नहीं मालूम कि एक एप्पल का कॉस्ट कितना है. हमें ये नहीं मालूम कि एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना है. हमें ये नहीं मालूम कि एक वाटरमेलन का कॉस्ट कितना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर मिसिंग. सो लेट अस से कि द हाउसवाइफ हैड एक्स रुपीज इनिशियली. लेट्स से वन एप्पल का कॉस्ट ए रुपीज है, वन ऑरेंज का कॉस्ट ओ रुपीज है, रुपीज ओ. जस्ट
मेक इट लुक लाइक थीटा ताकि जीरो के साथ कंफ्यूजन ना हो, तो वो में मैं ये कट लगा रहा हूँ. एंड 1 वाटरमेलन का कॉस्ट ₹W ले लेते हैं. Okay. So what I know from the initial statement is this: कि the housewife with certain amount of money, this certain amount of money I have taken as X, can buy either 10 apples or 15 oranges or 2 watermelons. So which means ये जो housewife के पास X rupees है, that should be equal to the cost of 10 apples. This should be equal to 10A. But with the same amount of money, she can also buy 15 oranges. So X should also be equal to 15 orange ka cost. And with X amount of money, she can also buy 2 watermelons. So X should also be equal to 2 watermelons ka cost. So I can get the value of A in terms of X, X by 10, the value of O in terms of X, X by 15, and the value of W in terms of X, which is X by 2. तो जो भी हम वेरिएबल्स A, O, W ये सब ले रहे हैं, ये अल्टीमेटली X के टर्म्स में आ जाएगा. So we'll be left with only one variable, which is X. Fine. Now, what is the language of the question further? If she has 6 times the initial amount of money, which means if she has 6x initial amount of money, हमें x लिया था. What is the maximum number of oranges she can buy, given that she wants to buy at least 1 apple and 1 watermelon? Now, with this much amount of money, she wants to buy maximum oranges, but condition ये है कि she has to buy at least 1 apple and 1 watermelon. So since we want her to buy maximum oranges, so we will want her to buy minimum apple and minimum watermelon. लेकिन मिनिमम एक एप्पल तो खरीदना ही पड़ेगा और मिनिमम एक वाटरमेलन तो खरीदना ही पड़ेगा. तो पहले वो मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं. मतलब एक एप्पल उसको खरीदवा दिया तो x बाई 10 रुपीज खत्म हो गए. एक वाटरमेलन भी खरीदवा दिया तो x बाई 2 रुपीज भी खत्म हो गए. तो 6x में से इतने रुपीज खर्च हो जाएंगे in buying 1 apple and 1 watermelon, and whatever amount of money is left she can use to buy oranges. तो एक एप्पल एक वाटरमेलन खरीदवाने के बाद उसके बाद फ्रीडम है उसके पास जितने मर्जी ऑरेंजेस खरीद सके. तो पहले ये निकाल लेते हैं कि एक एप्पल एक वाटरमेलन खरीदने के बाद उसके पास पैसे बचेंगे कितने. तो इतने पैसों में से इतना खर्च करना है, तो जो बचेगा वो कितना होगा. लेट्स फाइंड दैट आउट. दिस इज 6x माइनस, इफ यू ऐड दिस यू विल गेट LCM is 10. यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा 5x, राइट. सो दैट इज 6x minus 6x by 10, or you can say 2 3 ja 2 5 ja. 6x into 5 30x, 30x minus 3x, that is 27x by 5. This is the amount of money she is left with. अब उसके पास पैसे इतने बचे हैं और एक ऑरेंज का कॉस्ट इतना है, तो कितने ऑरेंजेस खरीदे जा सकते हैं. सिंपल रूल है, आपके पास मान लो 100 रुपए हैं और एक ऑरेंज का कॉस्ट 5 रुपया है, तो कितने ऑरेंज खरीद सकते हो आप. 20. कैसे आया. 100 डिवाइड बाई 5 करके. So number of oranges, or the maximum number of oranges she can buy, is basically total amount of money that she has divided by the price of one orange. That will give you the number of oranges. तो हम इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग बाय अ फ्रैक्शन इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय द रेसिप्रोकल. 15 by x. x कैंसिल हो जाएगा. 5 3 जा 15 and 27 3 जा 81. So that's the answer. 81. So she can buy maximum 81 oranges. Okay, we have got the answer, but this does not seem to be very efficient method, right? It took me time and बहुत कुछ लिखना पड़ा. हम चाहते हैं जितना कम लिखना पड़े उतना अच्छा है, टाइम कम लगे उतना अच्छा है ना. So let's think about it कि how we can solve this faster. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ डेटा इज मिसिंग, किस इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी क्या है, एप्पल का कॉस्ट कितना है, वाटरमेलन का कॉस्ट कितना है, ऑरेंज का कॉस्ट कितना है, ये सब मालूम नहीं है हमें पहले से. तो ये सब मालूम नहीं है तो हम कोई रैंडम नंबर लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज इफ यू हैव ऑब्जर्व केयरफुली, ये मेथड जो हमने देखा, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है, तो इसके आंसर में लास्ट में ये x तो कैंसिल हो गया ना. या वैसे भी हम बोलेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो कोई नंबर होगा. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस शी कैन बाय. that has to be a number. So what does it imply? That whatever variable you are going to take in the question, ultimately it will cancel out,
क्योंकि आंसर में कोई वेरिएबल तो नहीं बचेगा ना, आंसर में तो एक नंबर बचेगा। तो जो भी वेरिएबल हम लेंगे वो क्वेश्चन में ही अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं कैंसिल जरूर होगा। एंड दैट टेल्स मी कि जो वेरिएबल हम लेंगे उसकी जगह कोई नंबर ले लें तो भी आंसर सेम ही आएगा। मतलब ये जो इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी आप ले रहे हो एक्स रुपीज, ये एक्स के बदले यू कैन टेक सम रैंडम नंबर, यू कैन टेक एनी रैंडम नंबर, यू विल ऑलवेज गेट द आंसर 81। घूम फिर के आंसर 81 ही आएगा। तो मैं एक्स नहीं लूंगा, वेरिएबल नहीं लूंगा, यहाँ कुछ नंबर ले लूंगा, उससे मेरा काम आसान हो जाएगा। बट नंबर सोच समझ के लेना है, कुछ ऐसा नंबर लेना है जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो। रैंडम नंबर तो ले सकते हैं, बट रैंडम नंबर लेने से मेरा कैलकुलेशन आसान होगा इसकी गारंटी नहीं है। कैलकुलेशन तब आसान होगा when you take that random number as the LCM of 10, 15 and 2. What is the logic for taking 10, 15 और 2 का LCM? Logic is this, ये जो x ले रहे हो 10 से डिवाइड हो जाए तो फ्रैक्शन नहीं बचेगा, x अगर 15 से डिवाइड हो जाए तो फ्रैक्शन नहीं बचेगा, x अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो फ्रैक्शन नहीं बचेगा। तो the smallest number which is divisible by 10, 15 and 2 will be the smallest multiple of 10, 15 and 2, which is same as saying least common multiple of 10, 15 and 2. LCM का full form यही होता है, least common multiple. Once you think about it, you can do everything mentally. You don't need to write even a single number. तो 10 का, 15 का, 2 का, इन तीनों का LCM निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा. What we'll consider is, let's say the housewife initially had 30 rupees. तो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं just for explanation. Let's say initially the housewife had 30 rupees. With 30 rupees she can buy 10 apples. So what is the cost of one apple? 30 divided by 10, 3 rupees. What is the cost of one orange? 30 divided by 15, 2 rupees. What is the cost of one watermelon? 30 divided by 2, which is 15 rupees. Fine. Now she has 6 times the initial amount of money. She has 180 rupees. 180 रुपीज में मैक्सिमम ऑरेंजेस खरीदवाने के लिए मिनिमम एक एप्पल और एक वाटरमेलन खरीदवा देंगे। नाउ शी इज लेफ्ट विथ 180 minus 18, शी इज लेफ्ट विथ 162 rupees. Now she is free to buy all oranges out of these 162 rupees. One orange का कॉस्ट इज 2 rupees. 162 rupees में कितने ऑरेंजेस खरीद पाएगी? 162 divided by 2, which is 81. That is the number of oranges. Okay? ये जो किया, ये करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, फटाफट सब कुछ हो जाएगा, इनफैक्ट मेंटली हो जाएगा. दिस विल टेक वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, लेस एनर्जी, लेस एफर्ट, एंड यू कैन डू दिस मेंटली एक्चुअली. फाइन. अगेन इज द सेम थिंग. if we get satisfied by this method, we'll never learn a new method. So unless you think about finding a smarter way or finding a better way, so we'll be stuck with the traditional ways of answering the question. वही चीज डेवलप करनी है. जब एप्टीट्यूड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यही चीज डेवलप करनी है. हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन अ बेटर वे. फाइन. Let's try and answer this question. Let me take a question on geometry. What is the area of the shaded region which is shaded in red color? बाहर एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक और स्क्वायर है, अंदर वाला भी एक स्क्वायर है. बाहर वाले स्क्वायर का साइड दे रखा है 16 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. जस्ट टू रिमाइंड यू सम फॉर्मूलाज. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर. एक दूसरा फॉर्मूला भी है, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर. If you know the length of the diagonal, you can directly use this formula. You will get the area of square. Area of circle we all know, it's pi r square. जरूरत पड़ेगी तो पाई की वैल्यू टेक 22/7. ठीक है? Okay. Try it. Tell me the answer in the chat box.
Not a very tough question. We all understand what is to be done here, right? ये एक तो ये इस कॉर्नर का एरिया निकाल लेंगे, दूसरा इसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा. So let's say this is A and this is B. Find the area जहाँ A लेवल किया है, find the area जहाँ B लेवल किया है, add A and B, will get the answer. Now since we are talking about geometry questions aptitude test में देते हैं तो उसका एक specific purpose होता है. The purpose is to check a few important skills जो कि जरूरी है. ये skills भी जरूरी है. आपकी observation skill कितनी sharp है या कितनी अच्छी है, आपका sense of visualization कितना अच्छा है, आपकी sense of symmetry कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें, ये भी important skill है. खास करके क्रिएटिव कोई काम होता है तो उसमें ये सब स्किल्स बहुत काम आती हैं. तो कुछ चीजें जो हम इस फिगर से समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन चारों कॉर्नर का एरिया इक्वल होगा बाय सिमेट्री, वी कैन से दैट. फाइन. सिमिलरली इस पार्ट का, इस पार्ट का, इस पार्ट का, इस पार्ट का, इन चारों पार्ट्स का एरिया इक्वल होगा. अगेन बाय सिमेट्री वी कैन अंडरस्टैंड दैट. सो एरिया ए निकालने के लिए मुझे क्या करना है? एरिया ए निकालने के लिए मुझे ये करना है कि आप बाहर वाले स्क्वायर में से, आउटर स्क्वायर में से यू विल माइनस द सर्कल, मतलब आउटर स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, you will get the area of 4 corners. I need the area of only 1 corner, so just divide by 4 plus B पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? सर्कल का एरिया माइनस इनर स्क्वायर का एरिया डिवाइड बाय अगेन 4. सर्कल का एरिया माइनस इनर स्क्वायर का एरिया करोगे तो ये 4 एरिया आएगा, इसमें से मुझे एक ही चाहिए तो अगेन डिवाइड बाय 4. पाई की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको. क्यों नहीं पड़ेगी? लेट्स अंडरस्टैंड. व्हेन यू आर एडिंग ऑल दिस you will be left with LCM 4, outer square minus circle plus circle minus inner square. तो ये माइनस सर्कल और प्लस सर्कल तो कैंसिल हो गया ना, तो बचेगा आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर. आउटर स्क्वायर का एरिया इट्स वेरी इजी, क्योंकि आउटर स्क्वायर का साइड दे रखा है 16 का स्क्वायर. इनर स्क्वायर का एरिया यू कैन फाइंड लाइक दिस. सी ये क्या है? दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ऑल्सो द साइड ऑफ द आउटर स्क्वायर. ये जो मैंने येलो लाइन अभी बनाई है ये सर्कल का डायमीटर भी है और साथ साथ ये बाहर वाले स्क्वायर का साइड भी है. सो दिस इज गोइंग टू बी 16, राइट? तो यही चीज मैं ऐसे बनाऊं क्योंकि ये सर्कल का डायमीटर है, ये भी तो सर्कल का डायमीटर ही है कि नहीं? ये दोनों येलो लाइंस जो हैं वो सर्कल के डायमीटर हैं. तो अगर सर्कल का डायमीटर ऐसे 16 होगा तो ऐसे भी तो 16 ही होगा ना. सो दिस इज ऑल्सो 16 and this 16 happens to be the diagonal of the smaller square. So if you know the diagonal of the square you can find the area by using half into diagonal square. तो मैं ये यूज कर लेता हूं, इनर स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, and this whole thing is to be divided by 4. 16 square is 256 and यहाँ 16 square is 256 divide by 2 which is 128 divide by 4. So 256 minus 128 is 128 divided by 4 and that is equal to 32. That's the answer. Okay, 32 is the answer. तो ये ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. Again, if I am satisfied, that's okay. But if I am not satisfied, I will think कि क्या और किसी तरीके से कर सकते हैं. तो देखो कैसे कर सकते हैं. If I have a little bit of sense of visualization, what I will do is this. Instead of doing all this, ये सब हटा देते हैं. ये चीज आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी, इसलिए बोला ज्योमेट्री है तो थोड़ा सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यू नीड टू विजुअलाइज. अभी मेरे पास तो टूल है ऑनलाइन तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, बट व्हाट यू हैव टू विजुअलाइज इज दिस. यू हैव टू थिंक अबाउट द सर्कल एंड प्लस इनर स्क्वायर.
इन दोनों फिगर को एक साथ साइमल्टेनियसली यू हैव टू रोटेट इट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर्कल और जो छोटा स्क्वायर है इसको आपको एक साथ साइमल्टेनियसली यू हैव टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। सो इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, ये तो हमें एग्जाम में तो विजुअलाइज करना पड़ेगा। देखो होगा क्या उससे, यहाँ पे आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इफ यू डू दैट, I am rotating the circle and the inner square, and 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आके रुकेगा यूं। What happened because of that is, जो एरिया मुझे फाइंड करना था ए और बी जो लिखा था वो दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड होके अब ये पूरा ट्राइंगल बन गया है। आई जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। वी ऑल नो कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, and by our sense of symmetry we can understand that this point is going to be the midpoint of the side of the outer square. This is also going to be the midpoint of the side of the outer square. Outer square का side 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 8 होगा। और ट्राइंगल का एरिया में मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों साइड में से किसी एक को बेस ले लो, दूसरा हाइट हो जाएगा। इफ यू टेक दिस एज बेस, दिस इज द हाइट। इफ यू टेक दिस एज बेस, देन दिस इज द हाइट। एनी विच वे यू आर गोइंग टू गेट द एरिया हाफ इंटू 8 इंटू 8, एंड दैट्स स्ट्रेट अवे 32। तो आंसर तो ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, बट ऐसे सोचेंगे तो हमें सिर्फ विजुअलाइज करना और उसके बाद सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, और इतना करने में आई डोंट थिंक इट टेक्स मोर देन 15-20 सेकेंड्स ऑफ टाइम। फाइन, ऐसे करेंगे तो मे बी 1-1.5 मिनट लगेगा, बट ये 15 सेकेंड के अंदर किया जा सकता है, 15-20 सेकेंड के अंदर। ठीक है, क्लियर है? फाइन, ऑल राइट। सो विल टेक वन मोर क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दैट। Not this one, let's try this. So all of you are engineers, सबने 11th-12th में आई एम श्योर ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन जरूर किया होगा। ऑप्शंस में एक बार दोबारा लिख देता हूं ठीक से। ऑप्शन ए एक्चुअली यूं है, 20/27 10 to the power n minus 1 minus 3n/4। ऑलराइट, आंसर इज बी। कुछ लोगों ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया था, तो आई एम श्योर दे हैव यूज्ड सम स्मार्ट टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट द आंसर। प्रोसेस में जाएंगे तो इट इज लाइक दिस। ये क्वेश्चन अगर किसी ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है तो उसको प्रोसेस तो नहीं मालूम होगी कैसे, हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन, बट यू डोंट नीड टू नो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू फिगर आउट द आंसर फॉर सच क्वेश्चंस। इसने नहीं पढ़ा कभी जिंदगी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
तो पहले मैं ये बता दूं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या रोल है इसमें. इट्स अ क्वेश्चन एक्चुअली फ्रॉम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 6 plus 66 plus 666 and so on till n terms. This is how you do. 6 कॉमन निकालते हैं. 1 plus 11 plus 111 plus and so on till n terms. Then you multiply and divide by 9. तो डिवाइड वाला 9 बाहर छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई वाला 9 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. Then you write it like this. 9 can be written as 10 minus 1 plus 99 can be written as 100 minus 1 plus this is 1000 minus 1 and so on up to n terms. Then this is 6 by 9. 10, 100, 1000 ये सब एक साथ ऐड कर लेंगे. ये भी n terms. -1 ये भी n टाइम्स आएगा. माइनस बाहर निकाल के 1 plus 1 plus 1 ये भी n टर्म्स. तो 1 1 1 1 n बार ऐड करोगे तो ये तो n ही बन जाएगा. और ये जो है 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका पहला टर्म 10 है. कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो भी 10 है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, वो लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा. बट इफ यू डू इट दिस वे इट इज गोइंग टू टेक टाइम. प्रोसेस पता है, अच्छी बात है, ऐसे कर सकते हैं, बट ऐसे करने की जरूरत नहीं है हमें. ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं. लेट्स गो बैक. वी कैन यूज ऑप्शन टू फिगर आउट द आंसर. ऑप्शन का हेल्प लेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा या ऑप्शन चेक करके आंसर आ जाएगा. सो हाउ डू यू चेक द ऑप्शन? यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये 6 plus 66 plus 666 अप टू n टर्म्स. n टर्म्स तक ऐड करना है. तो मैं n की कुछ वैल्यू ले लूंगा एंड द इजीएस्ट वैल्यू टू चेक विल बी n इक्वल टू 1. इफ n इक्वल टू 1 तो इन सारे टर्म्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा? ये कह रहे हैं 666 666 अप टू n टर्म. सो इफ n इक्वल टू 1 इसका मतलब इस सीरीज का सिर्फ आपको एक ही टर्म लेना है जो कि पहला टर्म होगा. n equal to 1 का मतलब you have to only take one term. If you take one term it has to be the first one which is 6. और अगर टर्म एक ही है तो सम क्या होगा? सम भी वही होगा. अगर एक ही टर्म है 6 तो सम भी 6 ही होगा. तो n इक्वल टू 1 लेके सम 6 आना चाहिए. यही हम चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में n 1 लेके 6 आ रहा है. जिस ऑप्शन में n 1 लेके 6 आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा. लेट्स चेक. n इक्वल टू 1 लेना है और चेक करना है 6 आता है कि नहीं. यहां पे देखा दिस पार्ट इज एग्जैक्टली सेम एवरीवेयर, राइट? दिस पार्ट इज एग्जैक्टली सेम इन ऑल द ऑप्शन. सिर्फ ये पार्ट चेंज हो रहा है. तो इस पार्ट को मैं अलग से यहाँ कैलकुलेट करके लिख देता हूँ. 20 by 27 10 to the power 1 minus 1. So that is 20 by 27 into 9. 9 3 are 27. So that's 20 by 3. So this part is going to be 20 by 3 everywhere if you take n equal to 1. Now 20 by 3 minus 3n by 4. 3 into 1 by 4 that is 3 by 4. 20 by 3 minus 3 by 4 करेंगे तो 6 तो नहीं आ रहा ना. चेक कर लेते हैं एक बार. LCM हो गया 12. 3 4 जा यहाँ हो गया 80. यहाँ पे आ गया 4 3 जा 9. So this is coming out to be 71 by 12 which is not equal to 6. So this is definitely not my answer. Let's check here. ये आ जाएगा 20 by 3 minus 2n by 3. n को हम 1 ले रहे हैं तो 2 into 1 by 3 is 2 by 3. So LCM आ गया 3. 20 minus 2 is 18 by 3 which is 6. तो यहां तो 6 आ रहा है. अब हम फिलहाल इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि यही आंसर होगा क्योंकि क्या पता कहीं और भी 6 आ जाए. तो बाकी जगहों पे भी चेक करना जरूरी है फिलहाल. तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स दैट वी हैव. लेकिन आप इसके बाद अगर आगे नहीं चेक करोगे तो काम चल जाएगा. इसलिए काम चल जाएगा इस केस में क्योंकि 20 by 3 तो है ही. तो अगर 20 by 3 minus 2n by 3 करके 6 आ रहा है तो 20 by 3 माइनस कुछ और करके 6 नहीं आएगा ना.
ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि 10 - 3 करके 7 आता है, तो 10 माइनस कुछ और करेंगे तो 7 नहीं आएगा ना। 10 - 3 is 7. 10 minus something else will never be equal to 7. So 20/3 minus 2n/3, if it is equal to 6, then 20/3 minus something else can never be equal to 6. तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ डेफिनेटली 6 नहीं आएगा, यहाँ डेफिनेटली 6 नहीं आएगा. So this has to be your answer. मान लो कभी ऐसा हो गया कि दो ऑप्शन में 6 आ रहा होता, पॉसिबल है, हो सकता है ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए होते कि दो ऑप्शन में 6 आता है. तो हमारा काम क्या है, दो ऑप्शन में 6 आ रहा है, बाकी दो एलिमिनेट हो चुके हैं. अब आप n को 2 ले लो. So if you take n equal to 2, then पहले दो टर्म्स आएंगे, तो 6 + 66 which is 72. तो दो ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं. अब दो जो बचे हैं उसमें n equal to 2 डाल के देख लो 72 कहां बन रहा है. That should be your answer. In most of the cases, in such type of questions, one value is enough to figure out the answer. एक वैल्यू काफी होता है ऑप्शन सारे एलिमिनेट करने के लिए और करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने के लिए होते हैं. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको n की या जो भी वेरिएबल है उसकी एक से ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत पड़े, वो भी ले सकते हैं. इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम टू फिगर आउट द ऑप्शंस. बट ज्यादातर केसेस में एक ही वैल्यू लेने से 4 ऑप्शन होगा तो 3 एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद योर आंसर. For doing this, you don't need to know the concept of geometric progression. ये तो कोई भी कर सकता है. It just requires basic mathematics. Fine. Okay, so I'll wind up the session here. I hope it helped you in understanding what is quantitative aptitude, and while preparation, what is it that you need to keep in mind in terms of becoming better at finding good methods of solving the problems so that you save time and energy. मेन तो टाइम है, टाइम एनर्जी भी सेव करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज गिवन लिमिटेड टाइम में यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. जितना कम टाइम और एफर्ट लगे उतना बेहतर है. ओके, सो दैट्स अ काइंड ऑफ माइंडसेट यू नीड टू हैव, दैट व्हाटएवर प्रॉब्लम यू हैव, इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, थिंक अ लिटिल बियॉन्ड, इज देयर अ बेटर मेथड ऑफ डूइंग दिस. If you develop that as a habit, then you will always be better at solving problems, and definitely you will be valued more than your peers. Fine. All right then, all the best to everyone. That's all from my side. Welcome everyone. Thank you so much, Nihal sir. We were glad to have you on board. If anyone has any questions, they can drop it in the chat box. Nitin is asking from where to practice. देखो, प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है. आपको गूगल पे या इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे सोर्सेज मिल जाएंगे. यू कैन गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. यू कैन जस्ट टाइप एप्टीट्यूड टेस्ट सैम्पल पेपर्स and you will get a lot of sample papers and you can solve from there and you can develop your practice from there. I suppose that's it. So thank you everyone for joining and being in the session. So all the best to everyone.